Let's start with today's session. So what we will be discussing is uh, the three subjects that you have: introductory microeconomics, introductory macroeconomics, and then you have introductory statistics. Now, statistics as a subject, this is introduced this year in in the first semester. Earlier, it used to be in the third semester. So your seniors in the third semester and you are almost studying the same subject, so they can also brief you and help you a lot in your and since their semester is almost getting over, so they can also help you in statistics as well. Now, first of all, let's come to microeconomics, and then we will cover other subjects. If you see the microeconomics course, folks, then यू कैन सी कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर whenever you get a reading list, so first what you get is the minutes of the meeting. This minutes of the meeting is by Delhi School of Economics along with teachers of different colleges, and उसके बाद आपके पास यहाँ पर कोर्स का आपके पास आउटकम्स एंड आउटलाइंस मिल जाएगा. So what we need to do in microeconomics is that we need to cover this economics of trade-off. Now there are two books. First of all, let's see what is this ALL. ये देखते हैं ये ALL क्या है, and then you will find another kind of an abbreviation which is DS. So there are essentially two books, and I've sent you both these books on your group. So these are your two books. One is microeconomics, basic microeconomics. The other is game of strategy. Now, ये जो games of strategy है, this is only for game theory part. Now, game theory, this is the first time that you will be. Isn't my screen not visible? I think that was visible. Can someone type yes no on the chat box? My screen is visible. Okay, great. Yes, Ria, you have something to say? No? I think check your connection, anonymous attendee. Yeah. So what we have is these two texts that we are going to follow. Now, in one thing that you can do is you can directly get to these two texts. ये मैंने आपको text already भेज दिए हैं, so you can read the relevant chapters from these two books. Or if and that is what I personally prefer. I personally prefer online reading because I read it really quickly as compared to offline. Or what you can do is, as some of you would have already done, you would have bought your readings, which we call in economics reading list, readings जो होती हैं, that you can buy from either DSE, or you would have bought it from SRCC photocopy or from your individual college photocopy as well. If you've not bought it, you can buy it. These are photocopies of these particular pages. Now, how do we go about this microeconomics course? Now, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कोर्स जिसके अंदर हम बेसिक्स करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स करेंगे. सो सम ऑफ विच विल ओवरलैप विद what you would have already done in your class 12th, but a little advanced version of this. So you will be talking about in the first unit what is the economics of trade off. So यहाँ पर थोड़ा सा आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करोगे जब आप गेन्स फ्रॉम ट्रेड के बारे में बात करोगे. यू विल बी टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट. How does an individual optimize decision? How does society optimize decision? तो हो सकता है कोई इंडिविजुअल के लिए एक पर्टिकुलर चॉइस अच्छी हो बट वो सोसाइटी के लिए ना हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्मोक, देन मे बी वो इंडिविजुअली मेरे लिए भी ख़राब है, बट इन जनरल मुझे उससे यूटिलिटी मिल रही है. या इफ आई ड्रिंक, मुझे उससे यूटिलिटी मिल रही है, बट सोसाइटी के लिए शायद से ख़राब हो. सो could be an example that, for example, I am burning my stubble. All of you might have heard about this परेली जो आप बर्न करते हैं हरियाणा और पंजाब में. तो उससे क्या है, वो इंडिविजुअली अपना तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो रेजिड्यू वो ख़त्म हो जाए, बट दे आर इम्पोजिंग अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन द इंटायर सोसाइटी, स्पेशली बाहर की सोसाइटी, दिल्ली एनसीआर की सोसाइटी में जो पोल्यूशन हो रहा है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट. व्हाट आर द रिसोर्सेज, व्हाट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट आर गेन्स फ्रॉम ट्रेड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. वाई डू वी इन द फर्स्ट प्लेस, वाई डू वी ट्रेड विद समवन एल्स? हमारे पास कुछ है देने के लिए और दूसरे से हमारे पास कुछ है लेने के लिए, तभी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम अपने कंट्री के अंदर ही रहेंगे. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड हाउ डू दे मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल आउटकम्स. Then we will move to how markets work. When we talk about how markets work, इसके अंदर we'll talk about what you already studied in class 12th,
basics of demand, basics of demand and supply, prices and allocation of resources, how prices actually allocate the how actually prices reflect scarcity, and उसकी वजह से कैसे allocation of resources होता है. If the price of a particular commodity in the market is high, that shows that there is a scarcity of that particular commodity. In general equilibrium sense we will talk about it कि हमारा उस कमोडिटी का सप्लाई कम है और उस कमोडिटी का डिमांड ज़्यादा है, सो वो रिसोर्स एलोकेशन देखता है. देन वील टॉक अबाउट इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे हो रहा है, मार्केट्स एंड ट्रेड के बारे में. एंड फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट वेलफेयर, दैट इसेंशली पूरी सोसाइटी को क्या फ़ायदा हो रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन से, या फिर इन जनरल फ़ायदा कैसे हो सकता है. सो इन वेलफेयर विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आप वेलफेयर एनहांस कर सकते हो सोसाइटी का. आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल है कि जैसे हम बात करते हैं कि एक कमोडिटी, मोस्ट ऑफ आई मीन ऑल ऑफ यू हैव टेकन एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट अ लॉट ऑफ यू कुड पे मोर. अगर मैं सबसे पूछूं कि क्या 15,000 रुपये इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन पे, अ लॉट ऑफ यू कैन से कि यार हम एमिटी भी जा सकते थे जहाँ पर हम 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, ठीक है, बट आपको 15,000 रुपये में वो एजुकेशन मिल रही है जो 1.5 लाख, जो जिसके लिए लोग 1.5 लाख देने के लिए रेडी हैं. सो एसेंशली यू आर बीइंग सब्सिडाइज्ड. बट अगर आपको मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम लेके आना है, एक वेलफेयर ऑप्टिमल लेके आना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप और एक कोई इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, जो नहीं अफोर्ड कर सकता. सो व्हाट यू डू इज़ यू चार्ज अ पर्टिकुलर प्राइस, यू कीप द प्राइस एट 1.5 lakhs. जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको आप पूरी सब्सिडी दे दो, और जो अफोर्ड कर सकता है उसको कहो कि 0 रुपीज़ सब्सिडी मिलेगा. दैट मीन्स आपने क्या किया, जो इंसान दे सकता है, जो बच्चा मर्सिडीज से उतर के कॉलेज आ रहा है उससे आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, और जो नहीं आ रहा उससे पैसे तो आप उतने ही ले रहे हो, बट उसके बैंक अकाउंट में आप पैसे डाल देते हो. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन अचीव वेलफेयर. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. अगर किसी ने सुना हो तो डीबीटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो वील बी टॉकिंग अबाउट इन दिस हाउ मार्केट्स वर्क. कई बार इक्विलिब्रियम जो मार्केट ने दिया है वो हो सकता है अच्छा ना हो. 1.5 लाख रुपये पे क्या होगा, 1.5 लाख रुपये में सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो एफिशिएंट तो होगा बट वो इक्विटेबल नहीं होगा. So we will talk about efficiency and equitability in this particular market, and कई बार markets भी fail कर जाती हैं. Then role of the government, कि government का role कहाँ आता है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि मार्केट में आपको क्या करना है कि अमीर लोगों से कई बार हम टैक्सेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वुड हैव सीन कि टैक्स ऑन अल्कोहल, टैक्स ऑन सिगरेट्स, टैक्स ऑन दी सिन गुड्स जिसको हम बोलते हैं, सिन गुड्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि आप जितना मर्जी टैक्स लगा लो लोग कंजम्पशन उसकी कम नहीं करेंगे. सो वील बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, की टैक्सेशन कई कमोडिटीज़ पे ज़्यादा क्यों होता है, कई कमोडिटीज़ पे आप कम टैक्स क्यों करोगे, और उसकी वजह उसकी डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा आप किस कमोडिटी को कितना टैक्स करोगे. देन वील टॉक अबाउट पब्लिक गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ केयर हो गया, दीज आर पब्लिक गुड्स. तो हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स की, प्राइवेट गुड्स की, एंड देन नॉन पब्लिक नॉन प्राइवेट गुड्स के बारे में बात करेंगे. तो पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो बेसिकली नॉन राइवल होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं. वील टॉक अबाउट इट, नॉन राइवल क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है. सो देर आर सर्टन काइंड ऑफ गुड्स जिसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस सर्विसेज ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकार को आके देनी पड़ेगी वो चीज़ें. ऐसी एजुकेशन और हेल्थ के अंदर मार्केट्स कई बार फेल कर जाती हैं, तो वो गुड्स हैं जो गवर्नमेंट को आके प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स एज कम्पेयर टू प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स हो गए जैसे आपने अपना एप्पल का मोबाइल फ़ोन खरीदा, दैट इज़ अ प्योर प्राइवेट गुड. या फिर आपने अपना सब्सक्रिप्शन या आपने कोई चीज़ खरीदी, कपड़े खरीदे, दैट्स अ प्राइवेट गुड. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. ये आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी पढ़ोगे आगे जाके 5th और 6th सेमेस्टर्स के अंदर. सो यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन होगा कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी के मेजर्स क्या होते हैं, एंड पॉवर्टी क्या होती है, एंड पॉवर्टी को हम कैसे देखते हैं. And finally, in this particular subject, we will be talking about individual decisions and their interactions. कि लाइफ में कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो एक्शंस होते हैं, और कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो स्ट्रैटेजिक इंट्रैक्शन होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम. अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, या अपने ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, do you think it is a decision
or is it a strategy? Do you interact with others, or is it an individual decision, or it could be both? What do you think? कि क्या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन वो एक इंडिविजुअल एक्शन होता है या वो एक स्ट्रैटेजी होती है? सो what it could be, so some of you have answered, it could be an individual decision. बट जब हम प्रिपेयर करते हैं, जब आपको ये भी सोचना है, यू आर राइट कि मैं अगर IAS के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो वो इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है. बट अगर आपको वहाँ पर IAS बनना है, आपको रैंक 1 से लेके रैंक 50 तक आना है, तो आपको स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ेगी. Everyone else is also preparing. How will you make your answers better? वो ट्रिक है कि हाउ विल यू सेल योर आंसर्स. एक एग्जामिनर बैठा है, उसके पास में मेंस की जब आप आंसर स्क्रिप्ट चेक कर रहे हैं तो उसके पास 12,000 आंसर स्क्रिप्ट्स हैं. उस 12,000 आंसर स्क्रिप्ट्स में हाउ विल दैट पर्सन डिसाइड दैट दिस विल बी रैंक 1, या इस बंदे को मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स देने हैं? That is based on strategy. How are you presenting your answers vis-a-vis others? So you're trying to kind of compete, not knowing what your competition is. You don't know what your competition is. Similarly, कई जगह पे strategic interaction हो सकता है. For example, अगर आप Zomato या Swiggy खोलोगे तो आपको दिवाली पे सबको ऑफर्स मिलेंगे, सबके ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है. दिवाली के टाइम पे आप ऑफर खोलो, आपको Amazon पे भी ऑफर मिलेगा, आपको Flipkart पे भी मिलेगा, आपको जेप्टो पे भी मिलेगा, आपको जोमेटो पे भी मिलेगा, आपको स्विगी पे भी मिलेगा. इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअल स्ट्रैटेजिक इंट्रैक्शंस. आप एक्शन ले रहे हो, उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं से आएगा. अगर कोक कोई एक्शन लेगा तो उसका रिएक्शन पेप्सी भी देगी, उसका इम्पैक्ट पेप्सी पे भी पड़ेगा, और पेप्सी कोई एक्शन लेगा तो उसका इम्पैक्ट कोक पे भी पड़ेगा. So therefore there are certain decisions which are strategic in nature. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके डिसीजन के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको कई बार बैकवर्ड इंडक्शन से एक्शन लेना पड़ेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई कैन डू गिवन व्हाट माई कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू डू. समझ में आया ये चीज़? यस नो, मतलब यू कैन जस्ट राइट इट ऑन क्वेश्चन एंड आंसर कि हाउ गेम्स वर्क. दिस इज एसेंशली वेयर you have this beautiful theory of game theory, जहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. समझ में आया आपको ओवरऑल द सिलेबस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? एनी डाउट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर? एनी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन you can raise your hand and I'll unmute you, and then I can take up your doubts. Now if you see the distribution of marks, you can see कि मतलब आपका 4th यूनिट से कम आपका वो है. मेजर जो आपका जो चंक आएगा वो आपका हाउ मार्केट्स वर्क के ऊपर से आएगा. सो दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एंटायर कोर्स, एंड द प्लस माइनस 10% हो सकता है ऑफ कोर्स. एंड योर असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन इंटरनल्स ऑफ 25 मार्क्स, जिसमें से 5 मार्क्स जो होते हैं वो आपके अटेंडेंस के होते हैं. इफ़ यू गेट मोर देन 85% मार्क्स तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं. इफ़ यू गेट 80 to 85 के बीच में तो 4 मार्क्स. तो द रेंज इज 85 प्लस में आपको 5 नंबर मिलेंगे, 80 to 85 के बीच में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं अटेंडेंस के, 75 to 80 के बीच में आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, 70 to 75 के बीच में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, एंड 66 से लेके 70 के बीच में आपको 1 मार्क मिलता है, और उससे नीचे 0 मिलता है. ठीक है, बिलो 66 इज 0 मार्क्स. सो ये आपके 5 मार्क अटेंडेंस के हैं. देन जो रेस्ट 20 मार्क्स होते हैं, इट्स यूजुअली डिवाइडेड इनटू 1 टेस्ट एंड 1 असाइनमेंट, और इट कुड बी अपॉन योर इंस्ट्रक्टर कि 2 टेस्ट हो जाए या 2 असाइनमेंट हो जाए, या 1 टेस्ट तो होना ही चाहिए वैसे तो. सो दिस इज हाउ योर करिकुलम लुक्स लाइक. Now this is a new syllabus folks, this is a new syllabus and wonderful authors. ये जॉन लिस्ट हैं, इनको सर्च करना अगर आप उसके ऊपर हो, लिंक्डइन पे हो, सर्च दिस पर्सन जॉन लिस्ट. he's a professor at Chicago. He's retired now, and he's also there's this company in US called Lyft, अगर किसी ने सुना हो, LYFT. It's like Uber. उसके ये चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, द वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट. So this is how this person goes by, and he's a wonderful author. Apart from that, both these authors are also very well known.
तो आप इनकी बुक से पढ़ोगे, यू कैन डू इट. नाउ सिंस दिस इज एन इंट्रोडक्टरी कोर्स, इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, but just in what we are planning to do is with a couple of professors of the university, we are planning to have something called as MOOCs, okay, massive online open courses. So you can enroll in one of these MOOCs. I'll send you the link of the MOOC one that's ready. It will be ready in the next 1 week. We are planning to launch it very soon. So you can enroll yourself in that particular MOOC, and there you will find you will have those weekly sessions. But those will be kind of I mean, it will not be your regular जो आप कोचिंग अगर आप सोचते हो तो वो कोचिंग टाइप नहीं है. These are all professors of different universities, and that is what is different about this, that it's not coaching material and it's not coaching which is going to guide you. These are professors who are going to guide you in these particular programs. And to top that, I'm inviting someone who's very special, who will help you understand the mathematics side of it. That person is a professor at Ashoka University. He goes by the name of Professor Amit Goyal. So I'll be inviting him, and I'll also try to invite one more special guest, someone I can't name right now. He'll be a special entry, and he'll also interact with you in one of these sessions. So this is how we'll be going about microeconomics. The details of these massive online courses will be given soon, but don't take them as a regular coaching thing. If you're expecting it to be a coaching kind of a class, that is not going to be the case. It's going to be much more, it's going to be very helpful in the sense in the sense of being enablers, that it will help you take up the subject, understand the subject better, but essentially you would have to read the subject. So this is how we'll go about it. And one session I will have in this, where I will tell you that how this particular course, so if you see the UPSC, so I'm kind of tethered towards preparing students for competitive exams. So I will tell you that how this particular course can be useful in your competitive exams like CSE and IES and RBI. So microeconomics is asked in all these 3 examinations. So I'll tell you which sections that you need to cover properly for a better understanding of economics from an examination point of view, competitive examination point of view. And we'll be having 1 or 2 doubt sessions in the end, where we'll be discussing certain questions that could be possibly be asked. So again, there is no requirement per se of any kind of coaching that you require. It's majorly based on self-study, and it would require a little bit of effort from your side, because MOOCs will be there to assist you. They're not going to be substitute of your classes. These are basically going to be of assistance. So this is about microeconomics. If you have any doubts, I can take them. I will take Divit's question. Otherwise, you can raise your hand for microeconomics. So Divit, don't worry about all of this. You can really start with this particular course with the very basic. You don't need to go through your class 11th and 12th. I don't think you need it. Mehak, even if you give 4-5 hours, that will be more than sufficient. You will not be requiring any coaching per se. In fact, the problem with coaching is, एक तो ये जितने भी आपको कोचिंग मिलेंगे, these are basically run of the mill shops होंगी आपकी, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री होती है आपकी. तो you will not find अगर कोई क्वालिटी होगा तो I mean वो कोचिंग में क्यों पढ़ा रहा होगा, पहली बात तो ये है. ठीक है. सो दूसरा है कि कोचिंग आपको कई बार हैंडीकैप बना देती है, स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर हायर स्टडीज़, तो यू कांट हैव दैट हैंडीकैप. द आइडिया ऑफ मूक्स इज टू हेल्प यू. अगर सपोज एक कॉलेज में हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, एक कॉलेज में थोड़ा सा हो सकता है कि इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, तो मूक्स विल हेल्प यू गेट टू दैट लेवल. एंड जो आपको टेक्निकल पार्ट है वो आपको मूक्स में हेल्प मिल जाएगी. आपके जनरल जितने डाउट्स हैं वो सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा. बट इफ़ यू थिंक कि आपको डिक्टेशन मिलेगी और डिक्टेशन के बेसिस पे आप उसको रट के चले जाओगे, वो नहीं हो सकता. आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स, अगर आप इको ऑनर्स में आए हो और इस एक्सपेक्टेशन से आए हो, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग कोर्स. सो पर्सनली कोचिंग जाना और कोचिंग के अंदर मतलब वो फील करना कि अच्छा ये लोग भी यहीं पे बैठे हुए हैं और हम वहाँ पर नोट्स बना रहे हो, वो सेम तो चीज़ आपको कॉलेज में भी मिल रही है, वो सेम चीज़ आपको मूक्स में भी मिल रही है. तो वाई डू यू वांट टू स्पेंड 10,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट to go for coaching?
जब मूक्स कैन बी रियली इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी रियली, मतलब आपके पास एक नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। कोचिंग में क्या होगा, 100 जने होंगे, 150 जने हो जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट मूक्स तो आपका इंट्रैक्शन होगा 500 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ। तो योर कोहर्ट विल बी मच स्ट्रॉन्गर एंड यू विल सी योर रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो वहाँ पर हम जब विल हैव दीज अपलोड्स सर्टन क्वेश्चंस देयर, यू कैन सी योर रिलेटिव परफॉर्मेंस कि अच्छा मैं परफॉर्म कैसा कर रही हूँ। सो दैट वेज इट बिकम्स मच मोर मैसिव in terms of your in terms of analyzing where you stand. And what we are planning to have is, I understand that physical interaction बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. So what we are planning to have is that we'll have these overall circuit जो हम बना रहे हैं इको का, हम उसके circuit की we'll be having every 15 days we'll be having certain meetings. And I always say that you learn the most by movies. So what we are also planning to have is some kind of an interaction where we show you relevant movies related to these particular areas. For example, when we talk about this particular subject, game theory, we'll be screening a movie by the name of A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. अगर किसी ने देखी हो मूवी, दिस इज बेस्ड ऑन अ प्रोफेसर जिन्होंने गेम थ्योरी को पॉपुलराइज किया था, जॉन नैश. सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट. तो वो हम इंट्रैक्शन जो होगा वो हम हर 15 दिन में एक इंट्रैक्शन मीट रखेंगे जिसमें सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे एंड यू कैन इंटरेक्ट विद योर पीयर्स. So that is what we are trying to build. We are trying to build a social network just of econ students. जो आपको which will go way beyond coachings and आपको एक प्लेटफॉर्म देगा टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड देन टू नो ईच अदर. आप सब ग्रुप्स बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है. एक किसी का मैथ स्ट्रांग है तो आप उस ग्रुप में जा सकते हो, किसी को IAS का करना है तो आप उस ग्रुप में जा सकते हो. सो दैट इज़ द कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग, अ कम्युनिटी विच इज़ of the students but led by professionals, led by professors. So this is what we are trying to build, and this is an exciting phase for all of us to be associated in, and it's a new thing. So I mean it's worth exploring. I'll take more questions. So Mehak, yes, Mehak, I know St. Stephen's teachers are really eager to teach there. You have really good professors also there. So but again this is about a community. So St. Stephen's में आप सारे सब St. Stephen's के साथ हो. When you become a part of community, you get to interact with other teachers, other professors, other students more importantly. PYQs इसके आपको नहीं मिलेंगे लाल बहादुर मासूम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये नया सिलेबस है, इसलिए इस सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे आपको. आई विल सेंड यू द लिंक फॉर petition to get Professor Sid in SVC. I think let me be in Gargi. I'm pretty happy there. Let's talk about Miranda. Miranda is also good. Folks, see, आप अगर कॉलेज के नाम पे जाओ तो आपको अच्छे कॉलेज में भी कई टीचर्स हो सकते हैं कि उनका स्टाइल अलग है. सो इट्स नॉट लाइक अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो I'll give you an example. So I recently, I told you that I also teach at Labasna. So I taught the 97th batch of IS officers, IS and all other service officers. तो वहाँ पर हर कोर्स की रेटिंग होती है, हर लेक्चर की रेटिंग होती है. So I achieved a rating of 80%. Now मेरा deputy director is a senior of mine. So मेरा he called me up and he said you got really good rating. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितनी रेटिंग है, तो ही साइड 80% है. मैंने कहा यार 80% ठीक है यार, इतना एफर्ट डालने के बाद 20% बच्चे कहाँ चलेगा. सो द आइडिया इज दैट यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन. हर किसी को कुछ ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी. हो सकता है 70% 80% टीचर्स स्टूडेंट्स को मैं अच्छा लगता हूँ, बट 20-30% को लगता है कई बार कि स्टोरीज सर बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, ठीक है. जैसे मैं कई बार क्लास में पढ़ाता था, खो ही जाता हूँ, मतलब एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में चला जाऊँगा और मैं भूल जाऊँगा कि मैं पढ़ा के आ रहा था. तो एट टाइम्स वो डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, पर कई लोगों को अच्छा भी लग सकता है. सो इट्स दैट. सो एवरी टीचर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टीचर एंड you might resonate with that teacher. हो सकता है आप resonate ना करो. तो that is the platform that we are building. That I mean you would have an external help, not just in terms of teaching studying resources, but also in terms of peers. अगर हमसे अच्छा नहीं लग रहा, किसी के अच्छा नहीं लग रहा, किसी और से पूछ लो. That is what the community building is all about. And I think WhatsApp ने वो community का जो नया वो निकाला है, that is going to be incredible for all of us. I'll just send you the link of this on this particular group as well. So I'll take one more question. Pursue UPSC. अनुसुक दुबे, I would not suggest कि आप पहले साल से UPSC देखो.
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी के लिए कैसे करना है. आई विल गेट यू इन टच इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट. आप रैंक 1 से लेके रैंक 500 तक सबको, आई कैन गेट यू एनी वन, किसी से भी बात करनी है, आई कैन गेट यू इन टच. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फंडामेंटल्स बिल्ड करने हैं आपको. आईएएस ऐसे नहीं होता, पहले फंडामेंटल्स बिल्ड करो. जितने भी आप फर्स्ट ईयर वाले जो देखते हो कि 21 ईयर्स में आईएएस बन गए हैं, अगर इफ दैट इज़ व्हाट यू आर प्लानिंग, तो आपके पहले यहाँ पर फंडामेंटल्स बिल्ड होने चाहिए. उसके अलावा आई विल हैव वन सेशन. दिस सेशन विल बी नेक्स्ट, अभी इसी कमिंग वीक में एक यूपीएससी के ऊपर आई विल टेक अ सेशन ऑफ हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के साथ में आप पहले अटेम्प्ट में कैसे कर सकते हो. इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 2-3 ऑप्शनल्स के बारे में मैं बात करूंगा. एंड आई विल कॉल द टॉपर्स ऑफ ईच ऑफ देम. तो आई विल चेक कौन कौन फ्री है. आई विल कॉल दीज फोक्स एज वेल. एंड कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ. राइट नाउ ऑल योर फोकस शुड बी ऑन योर इकोनॉमिक्स कोर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो आप कोर्स कर रहे हो, प्लस इफ यू कैन डू करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स. That is more than sufficient, and we are launching a small kind of a I already have around 1,600 students who are enrolled with me for daily news. So there is a group called Aspiring Bureaucrats. I'm sending you the link for that. Hold on, I'll just send you the link for Aspiring Bureaucrats as well. So Aspiring Bureaucrats is a group where it's again now a community. It's not no longer a group where I send everyday news articles, but those are economics related news. So you can follow that, and soon we are also going to have certain kind of MOOCs for that as well. So economics आप वहाँ से कर सकते हो, but only current affairs. Do not touch anything else. Don't spoil your career फॉर दिस कि अभी आपने यूपीएससी कर दिया और उसके बाद में आप अपने नंबर कमा गए. एंड आई एम टेलिंग दिस विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. दिस हैपेंड विद मी. मैं जैसे ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आया था, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2007, मेरे दिमाग में था अब तो ज़िंदगी सेट हो गई है, अब सिर्फ मास्टर्स पढ़ना नहीं है, अब सिर्फ यूपीएससी प्रेप करना है. उस चक्कर में मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो परसेंटेज था वो सिर्फ 53% रह गया था. सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक. अगर ये परसेंटेज अच्छा होता तो मैं उसके बाद जब यूपीएससी नहीं हुआ तो सीधा किसी बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकता था. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. डोंट डू द मिस्टेक दैट आई डिड. मेक श्योर दैट योर ग्रेजुएशन स्कोर इज़ गुड, एंड देन आप अपना यहाँ पर बिल्ड करो. उसके बाद आई हेल्प यू. मैं आपके सीनियर्स को भी हेल्प करता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बने हैं. आई हेल्प यू आउट हाउ टू प्रिपेयर ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. But for now, trust me, trust the process, focus on your studies. Then Divit, Kirodimal is an amazing college, especially because मैं भी किरोड़ीमल से हूँ. So you will meet my mentor there. मिलना जाके वहाँ पर शौमोजीत सर से. ठीक है, शौमोजीत भट्टाचार्य सर है. ठीक है, he is a lifetime mentor. वहाँ विनीता मिलेंगी तुम्हें, वहाँ पर समीर मिलेंगे. So these are all professors of mine. It's an amazing college. मूक्स जो होगा वो वंस अ वीक सेशन होगा. दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग टू हैव, द काइंड ऑफ मूक दैट वी आर प्लानिंग टू हैव. बिजनेस लाइन में जाना है. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. यस महक, योर क्वेश्चंस, आई ऑल्सो शेयर योर क्वेश्चंस हेयर. सो यस, it is true that if you want to crack the examination, you need to start in really early. So if you see, in the 96th batch I taught a girl whose name you would have known, Ria Dabi. She is the sister of Tina Dabi. So ये दोनों की दोनों sisters जो हैं, और उसके अलावा there are couple of more, there are twins who are cracked civil services. जैन करके हैं. तो how do you think that they cracked in the first attempt at such a young age? तो वो there is this method to madness, that is UPSC. तो यू नीड टू फिगर आउट कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट तो ईजी हो जाएगा. तो बट आपको स्टार्ट अर्ली ही करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. बट गिव योर सेल्फ टाइम. इको ऑनर्स भी डिफ़िकल्ट है, तो आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी सिर्फ आप करंट पे करो, एंड जब हम इसके ऊपर सेशन करेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा. आपको मैं यूपीएससी का सिलेबस दिखाऊंगा, साइमल्टेनियसली मैं आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, कैसे कैसे आपको वो करना है. ठीक है, सो फॉर नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स
शुड बी योर फोकस अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, क्योंकि स्टैट्स और मैथ्स पूछी नहीं जाती यूपीएससी में। बट अगर आपको आईईएस और आरबीआई ग्रेड बी भी देखना है, आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर करके एक होता है, तो अगर आपको ये दोनों देखना है तो आपको स्टैट्स और क्या कहते हैं मैथ्स पे भी फोकस करना है। और अगर आपको मास्टर्स करना है तो स्पेशली आपको स्टैट्स और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो इन एनी केस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी द बेस फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. So for bureaucrat, you need to do this. I will just send you the link, folks. Give me 1 second. I've sent the link. I am also sending you the link for the community, which is aspiring bureaucrats. This community which I've just sent you is, so aspiring bureaucrats is basically basically a group where I send the current affairs of every day, and you need to keep that group on mute because usually when I send, the time that I send these news is very early in the morning, around 5 o'clock in the morning, तो उसको आप म्यूट पे ही रखो तो बेटर है. Now let me not compare colleges. Samiksha, actuarials is going to be really tough with econ. Actuarial अपने आप में statistics बहुत heavy लेता है, तो वो be careful while doing it. Divit, I will definitely do this thing. Riya, I don't think you should go for SBI PO की नौकरी मैंने करी हुई है 2 साल 1.5 साल, but it's not a good job, especially e-commerce करने के बाद. You can do good things. अगर SBI PO कर सकते हो तो I'm sure कि आप UPSC कर सकते हो. SBI PO का जो एंट्रेंस है, जो वो है, वो प्रीलिम से टफ लगता है मुझे तो, ठीक है. तो I would say go to this. Anushak Dubey, I will call someone from the World Bank. One of my cousins is in the IMF. One of my best friends is in the World Bank. So I will call one day. I'll call them to in one of these sessions, and I'll have a discussion on how to get into IMF, World Bank, and that's a very good option to cover. But again, you need to do a master's, at least a master's, if not a PhD. Okay. So the best way to get into these places is do a master's and then do a PhD, or this might be news to you कि आप इको ऑनर्स के बाद डायरेक्टली PhD कर सकते हो अगर आपके 75% मार्क्स हैं. दैट मीन्स अगर आपका CGPA 7.9 है 4 साल के बाद, तो आप डायरेक्टली PhD कर सकते हो. MME में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका थोड़ा सा जो हाल है वो ख़राब होने वाला है, ठीक है, क्योंकि MME आपको बहुत परेशान करने वाला है 3 सेमेस्टर, ठीक है. CFA एंड FRM, गौरवी, आई वुड से कि अभी आप इसको होल्ड पे डाल दो, अगले 2 साल 3rd ईयर में शुरू कर देना आप CFA लेवल 1 और FRM भी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. पहले 2 साल बहुत हैवी होने वाले हैं, सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग. वॉट हैपन विद माई UPSC अटैम्प्ट्स? आई हैव गिवन 5 मेन्स एंड आई एम फ्रॉम दी बैच जब तो आपके पहले प्रीलिम्स में ऑप्शनल होता था, फिर 2 ऑप्शनल होते थे, फिर CSAT आया. So I kept trying with different options and मैं optionals change करता रहा था. So I did not have good guidance, I would say, and बहुत सारी खुद की गलतियाँ. I would never blame luck on that. खुद की गलतियाँ हैं. कुछ थोड़ा बहुत लक आया, but वो लक मेरी वजह से ही ख़राब था. So one of the attempts when everyone around me became an IAS is the attempt at, and मेरे पढ़ाए हुए जितने सारे मेरे सारे दोस्त थे सारे IAS बन गए, and कोई भी IFS नहीं था, सारे IAS ही बने थे. एंड उस अटैम्प्ट में आई फेल्ड इन हिंदी. मैं वो सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा बहुत अच्छा रैंक आएगा कि मैं बिल्कुल हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ा के गया. एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 2013 की डेट जब मेरा ये ब्लंडर किया था. तो दैट इज़ व्हाट कॉस्ट मी अ लॉट, बट लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली. तो tables have turned. I've now got to teach at Lavasna. So at times if you do a lot of effort, then you kind of reach wherever you were supposed to reach. So graduation masters would be much better. I don't think it's possible to do e-commerce. If you're weak at maths, you will eventually struggle a lot. Okay. I've already sent you the link for econ community. No, it's okay. It's okay. This is how life is. If you want to do higher studies, I would say DSE would be better if you want to get into corporate. अगर आपको थोड़ा सा चिल करना है, रिलैक्स करना है, थोड़ा UPSC टाइप करना है, तो JNU थोड़ा बेटर है. बट ब्रांड वैल्यू DSE की इन एनी केस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड DSE IG IDR अशोका JNU
these are the best places to go. We'll have one session for that. GE, I wouldn't say maths should be your GE, otherwise you can take anyone. I would personally prefer maths, and I would also arrange a lot of help for maths. I know a lot of professors in maths, so I can arrange a lot of help for a lot of MOOCs for calculus. तो पहले सेमेस्टर में आपके पास कैलकुलस आएगा, दूसरे सेमेस्टर में लीनियर अलजेब्रा आएगा. So I have a couple of people who I know are really good at calculus and linear algebra. So maybe I can ask them to arrange for these MOOCs for calculus as well. I've sent it on the group. You can check it. Okay, computer science is also a good option depending on what computer science are you taking. I would say computer science में क्या option है वो देख लेना. But GE in any case will help you. GE is anyways going to help you a lot. Okay, let's now switch to, folks, let's quickly switch to your second course, which is one of the most dangerous courses, mathematics. ठीक है. सो अगेन इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं. इसमें इन्होंने सिंपल लिख दिया यहाँ पर कि पूरे चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 9. तो यू कैन ओपन दी बुक, यू कैन एक्चुअली बाय दिस बुक, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी आपके पास यही बुक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. तो यू कैन बाय दिस बुक, सेडर हैमंड 2002 का जो वर्जन है, यू कैन डू इट. आई थिंक आई हैव सेंट यू फर्स्ट वर्जन, जो फर्स्ट वर्जन है मैंने वो भेज दिया, और आपको लेटेस्ट भी चाहिए तो मैं लेटेस्ट भी भेज दूंगा. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इन बुक से. तो यू कैन डायरेक्टली रीड इट थ्रू दिस. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ कोर्स, स्पेशली अगर आपका मैथ्स वीक है तो. This is going to be a tough course, so make sure that you devote sufficient time for this particular course. And for this particular course, we are also planning to have MOOCs. So इसके लिए again we are arranging a professor who is from a mathematics background, who's probably going to help you in the mathematics portion, and then you can apply it to economics. So this is basically application of mathematics in economics. So what we are trying to do is get you a pure mathematics professor who can help you in understanding the maths, and then you can apply it to economics. Maybe I can jump in a couple of sessions to help you out in applying it to economics. So that is how we are going to go about this particular course. But I would say among the three courses, around 40% या even 45 to 50% of your time should go into mathematics. That is how tough this is. बाकी जो है आप माइक्रो को 25% दे सकते हो, और स्टैट्स को ये माइक्रो को आप 20% दे सकते हो, और 30% जो है आप उसको दे सकते हो स्टैट्स को. बट 45 to 50% you would have to give it to mathematics. It is going to give you problem, especially if your maths is weak. और अगर आपका मैथ्स इन जनरल अगर मैथ्स जी है तो आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ से भी करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ से भी मिल जाएगा. I'll take more questions, folks. पहले मुझे एक बार ये करने दो, ठीक है. So this is one course, and again we'll have a weekly MOOC session. बट वो वीकली MOOC सेशन में हम उतना करेंगे जितना आप 2 हफ्ते में कर रहे हो, वो हम 1 हफ्ते में कराने की कोशिश करेंगे उस MOOC सेशन के अंदर, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस. एंड दैट प्रोफेसर जो मेरे दिमाग में है विल बी अ हार्डकोर मैथमेटिशियन. He is not from economics, he is a hardcore mathematician, so he'll help you out with the mathematics part, and then you would have to apply it to your core discipline. Then let's take introductory statistics. Introductory statistics के आपको कुछ lectures मेरे online आपको मिल जाएंगे, ठीक है. Some lectures I have already put. I will try to put more lectures of statistics. Since I used to teach it earlier, I'll try to put them. But this is an important course because ये तीनों course, semester 1 का, semester 2 का, semester 3 का, ये ultimately जाके semester 4 के अंदर एक econometrics करके subject है जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके आपको सारे videos मिल जाएंगे YouTube के ऊपर. तो वो सारे के सारे यहाँ पर जाके यूज़ होना शुरू हो जाएंगे. सो आप अपना स्टैटिस्टिक्स अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपका जो इनफैक्ट आपका जो ईयर 4 के अंदर जो आपका 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर जो आपका डेजर्टेशन है वो आपका अच्छा हो जाएगा अगर आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छा होगा. एंड द अदर थिंग इज इफ़ यू वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस,
अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग करनी है, तो दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल. सो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये आपको कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. दिस इज़ द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. एंड देन इन योर थर्ड सेमेस्टर आई विल बी टीचिंग यू आर. मे बी जो आपका नया कोर्स है उसमें मैं पाइथन भी पढ़ाऊंगा, आपको मशीन लर्निंग भी पढ़ाऊंगा. तो वो मेरे वीडियोस आर के ऑलरेडी यूट्यूब पे है. I'll also teach Python from your batch. I'll also teach Python. तो I'll teach you machine learning, but उसके पीछे जो एप्लीकेशन है, हार्डकोर जो स्टैटिस्टिक्स है, वो आपको पता होनी चाहिए. मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं कोड के थ्रू और उसका रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो डेटा पे कैसे यूज़ करते हैं उस सब चीज़ों को. बट उसके लिए आपको ये जो एलिमेंट्री जो आपको फंडामेंटल्स हैं, दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जैसे ये बेस रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हम बेजियन टेक्निक्स यूज़ करते हैं. काउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको बहुत ज़्यादा, इवन कैट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा काउंटिंग प्रिंसिपल्स. प्रोबेबिलिटी थ्योरी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आती है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसके मेरे वीडियोज़ ऑलरेडी ऑनलाइन पड़े हुए हैं. आई विल स्टार्ट पुटिंग अप मोर वीडियोज़ एंड वी हैव एन एक्सेलेंट प्रोफेसर टू गाइड यू विद द मूक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स अगेन. ठीक है. so that you don't need to join any particular run of the mill ये जो आपके typical coachings हैं, आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े. we'll be having this and we'll be showing you couple of good statistical movies, wonderful statistical movies, कैसे stats ने दुनिया बदली है. and I'll talk about the father of modern computing. if अगर किसी को देखना भी है तो आप अभी से देख सकते हो. एक मूवी है, आपको Amazon Prime पे या Netflix पे मिल जाएगी. it's called as द इमिटेशन गेम. ये इमिटेशन गेम आप मूवी देखिए, आपको पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से यूज़ हुई इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. सो देयरफॉर वील बी अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि वील बी डूइंग अ लॉट ऑफ अदर स्टफ अपार्ट फ्रॉम जस्ट द मूक्स. And interaction with your seniors, interaction with your batchmates, all of that we are building up. And this is your entire syllabus. किस तरीके से I've already sent you all these 3 books, essential readings. I think Miller and Miller नहीं भेजी, मैं आपको Miller and Miller भी भेज देता हूँ. जिसको मास्टर्स वगैरह करनी है, जिसको पता है कि हमें मास्टर्स वगैरह करनी है, यू कैन ऑल्सो बाय दीज बुक्स. दीज आर गुड बुक्स टू बाय, स्पेशली Miller and Dewar. These are good books to buy. ठीक है. Otherwise you can buy the readings. The readings should be sufficient. Now let me take more questions, because now is the time when you have to ask questions. If you want to raise hands, you can raise hands. I'll take more questions and I'll put this video as well as the previous video on YouTube today itself. Okay, so PDF of core आपको जाना पड़ेगा. जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं उस ग्रुप्स में मैं फिर से भेज दूंगा. you can join those groups, उस पर आपको मिल जाएगा. And folks, it's a request from my side that ये जो हमने econ 26 की जो कम्युनिटी बनाई है, इसमें आप इकॉनर्स के स्टूडेंट्स को ऐड कर लो. एंड आई वॉन्ट मोर वॉलंटियर्स. मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक 10 कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं. आई वुड वांट टू हैव मोर वॉलंटियर्स. अगर आप सीनियर्स से अपने पूछोगे तो मेरे पास सारे कॉलेजेस के वॉलंटियर्स हैं. सो आई वुड वांट मोर वॉलंटियर्स ऑफ इको ऑनर्स. प्लस बिकॉज अब इको ऑनर्स और BA प्रोग्राम बहुत ही पास हो गए हैं, क्योंकि 4 साल बाद BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स वाले को भी ऑनर्स की डिग्री मिल रही है. सो वी वुड लाइक टू हैव BA प्रोग्राम के जो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, BA प्रोग्राम के इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वी वुड लाइक टू हैव देम ऑन बोर्ड एज वेल. एंड प्लस स्लोली वी विल, क्योंकि इको ऑनर्स अब ओपन से भी हो सकती है, तो वी वुड लाइक टू हैव दीज स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड जो कहीं से नहीं, बट वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ओपन से कर रहे हैं, उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. So this is a huge community that we are building. We are expecting around 5,000 to 7,000 students in this entire community by the end of the year, and we will need these coordinators from different colleges. And where you will get help is once you are getting into your college fest, तो आपको sponsorships इससे यहाँ से मिल सकती हैं. आपको इसके अंदर we'll be have senior coordinators as well. तो उसके अंदर we can have some kind of elections as well. So that we can have a channelized पूरा एक वर्जन बना पाएँ, हम स्टूडेंट कम्युनिटी अच्छे से बना पाएँ, वो हम कर लेंगे इसके अंदर. एंड देन आपके जितने भी फेस्ट हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. कोई इंटर्नशिप है, वील पुट ऑन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन देयर. देयर आर फेलोशिप्स, देयर आर वंडरफुल फेलोशिप्स दैट आर अवेलेबल आफ्टर ग्रेजुएशन. एक फेलोशिप है लैम्प करके, लैम्प फेलोशिप. मेरे 2-3 स्टूडेंट्स अभी वहाँ पर हैं. ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ होती है एक फेलोशिप, तो उसके बारे में हम बताते हैं. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इंटर्नशिप्स. RBI के साथ हो गया, नीति आयोग के साथ हो गया.
So some of my students are now at Niti Aayog because they are either in the IS or in the economic service. I'll try to get you there in these internship positions. तो इस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लोर करो. How to build your CV, how to build your resume, how to build your LinkedIn profile. All of that we'll try to incorporate कि आपका फर्स्ट ईयर के अंदर ये आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो, अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन एंड ओवरऑल आपका ब्रॉडनेस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा और वाइडन अप हो, irrespective of whatever you want to do. Okay, so that's the community about. So try to spread the word about this econ 26 community. Now should I go for pol science? So why are you doing eco honors? That's my first question. You should have done pol science honors. Pol science is a good option that you can consider. Ashoka is expensive, but I would say since you are in, I think either you are in Miranda or Stephens, I would say Stephens would be better. Stephens and Miranda are much better. Fees भी तो compare करोगे ना. Then I don't want to get into G now. My YouTube channel, if you want to see, it's by the name of the Pink Professor. I've just go on to YouTube and type this, you will get my channel. Then MOOCs, I'll tell you where we'll put. रिया सेकेंड हैंड बुक्स, आपको बुक्स मिल जाएंगी बट रीडिंग्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज आपके सीनियर्स की रीडिंग आपके लिए यूजलेस है क्योंकि नया नया सिलेबस है. ठीक है. व्हाट वी विल ऑल्सो बी डूइंग रिया इज दैट सिंस वी आर बिल्डिंग दिस कम्युनिटी वील एंड इन मूक्स के थ्रू विल बी रेजिंग रिसोर्सेज. सो मैं कोऑर्डिनेटर्स, जो भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनके थ्रू वील गेट इन टच विद डिफरेंट स्टूडेंट्स. And if you are facing any kind of financial hardship in terms of books, in terms of resources, in terms of fees, you let your coordinator know or let us know. We'll try to help you out. If not that, we'll try to get you a paid internship. So don't worry about these things. We'll take care of it. And we'll be there. The SRCC photocopy guy is I mean, I always refer students to him. And I'll make sure that he sends you the books even if it has to be done on my account. So don't worry about all of this. Focus on your studies. We'll take care of a lot of other things. How much of the syllabus of IES and optional coincide? They do, but IES is much more. IES में मैथ्स भी आएगी, माइक्रो भी टेक्निकल है, इसके अंदर एनवायरनमेंट भी थोड़ा ज़्यादा आता है, इसके अंदर स्टैट्स भी आती है, इकोनोमेट्रिक्स भी आती है. So CSE is a subset of IES, but IES क्रैक करना बहुत ईजी है क्योंकि कंपटीशन 500-700 लोगों में होता है. CSE में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. मैथ्स और स्टैट्स में से स्टैट्स का मुझे पेपर देखना पड़ेगा कि स्टैट्स कौन सा ऑफर हो रहा है, उसके बेसिस पे आई कैन टेल यू. जतिन, आई डोंट थिंक यू नीड कोचिंग फॉर MME. यू ट्राई दी MOOCs. If that doesn't help, then you can always join a coaching. So I would say hold on for a couple of weeks. See how the MOOCs are being planned, and if you like them, go about it. अगर आपको लगता है नहीं मुझे घोट के ही पीना है, मुझे वो पूरी गुट्टी ही पीनी है कोचिंग की, तो then that's up to you. And if you have the money, of course you can take it up. I've already sent you the link. You can just check the webinar chat. आपके webinar chat पे आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे. आपको एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट का भी लिंक मिल जाएगा और आपको उसका भी मिल जाएगा. यू शुड प्रोसीड. अब फिर मास्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा PhD करो. आप अपना 75% लाओ, विच एसेंशली इज 7.9 CGPA ले आओ, तो आप सीधा PhD के लिए एलिजिबल हो. और मास्टर्स करनी है तो डू इट फ्रॉम अशोका, D स्कूल, ISI या GIDR. यही तीन ही से एक्चुअली में. फिजिकल एजुकेशन क्यों कर रहे हो भाई? क्या ज़रूरत है? और जावा और C++ से अच्छा पाइथन और R सीख लो. मास्टर्स, I will let you know when you need to start with your masters. We have a program. आप पहले अपना पहला साल ख़त्म कर लो, उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम आएगा मास्टर्स के ऊपर. वो प्योरली आपको मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कराना शुरू करेगा. एंड थर्ड ईयर एंड आपके सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो प्रोग्राम पिकअप कर जाएगा टू टीच यू ओनली टेक्निकल स्टफ. वेट फॉर इट फोक्स, वेट फॉर इट. अभी आप मास्टर्स के पीछे मत भागो, पहले आप अपना फर्स्ट ईयर संभालो. And the professor that I'm talking about, Professor Amit Goel of Ashoka, he's one of the best persons to go to for master's prep. But hold on, not from the first year onwards. And by the way, he was my professor when I went to Delhi school.
तो यूपीएससी अभी कुछ मत लो, आई वुड से मैथ्स, अभी मैथ्स ही लो। पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसा पॉलिटिकल साइंस का कुछ आपको ऐसा कुछ हेल्प नहीं मिल रहा उसमें, हिस्ट्री में भी नहीं मिल रहा, होल्ड ऑन, टेक अप मैथ्स। मैथ्स अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैथ्स से तो फिर पॉल साइंस हिस्ट्री ले लो। जी मुझे कंप्यूटर साइंस का वो तो बताओ कि क्या है ऑप्शनल पेपर क्या है। आई नो मैथ्स इज कैलकुलस। एससी गुप्ता बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, कम्प्लीटली इरेलीवेंट है, उसको उसको उसमें डाल दो, अलग से उसमें डाल दो, अब काम की नहीं है। फिर भी रेफ़र करना चाहो तो कर सकते हो, बट एससी गुप्ता का कोई पॉइंट नहीं है। स्टैट्स 200, माइक्रो 190, ठीक है। रिया जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप, आई विल टेक केयर ऑफ इट, just send me a message. And folks, that's for everyone else as well. If you know students of economics and you know that they are facing any kind of financial hardships, please refer them to us. I will and the team will try to take care of them in whatever way that we can. MOOCs will generate a lot of revenue for us, and that revenue should ideally go back to students. These students will be the ideal candidates that we would like to help. So if you like to, if you think that you know someone, and अगर आपको, प्लीज़ डोंट बी शाई, वी कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स। मैं सरकारी स्कूल से हूँ बिल्कुल, तो मेरा सारा एजुकेशन सरकारी उसमें रहा है। माई ग्रेजुएशन, माई स्कूलिंग, माई ग्रेजुएशन, माई पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑल ऑफ देम है गवर्नमेंट, ठीक है। so between D school and say a good private university abroad, I could not have afforded it, तो इसलिए डी स्कूल इज 3,000 रुपीज़, कोई बाहर जाता तो 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये लगते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड वी सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस, स्पेशली आफ्टर कोविड वी सी अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। सो डोंट वरी, we'll try to take care of you in whatever way it's possible. So do reach out to us. Kaushiki, please send me a message. I will add you to the volunteer group. I would like to have more volunteers from different colleges. देखो बहुत सारे को, आई डोंट वांट टू से कि कोई स्कैम है, नहीं है, बहुत सारे आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। सबका अपना ओरिएंटेशन है, देखो हर तरीके का ओरिएंटेशन है। यूपीएससी में भी आप पढ़ने जाओगे आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, ख़राब इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, बट एंड मैं हर साल लोगों से पूछता हूँ, मैं हर साल IAS ऑफिसर से पूछता हूँ, आर यू हेयर इन लबासना बिकॉज ऑफ अ कोचिंग, एंड नो वन रेजेज हैंड। मैं 2 बैचेस को पढ़ा चुका हूँ, नो वन रेजेज हैंड। हर कोचिंग में 20,000 स्टूडेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट द बेस्ट कोचिंग, सपोजिटली द बेस्ट कोचिंग, चलो वाजीराम एंड रवि की बात करते हैं, तो वाजीराम एंड रवि में 20,000 स्टूडेंट आते हैं, निकलते कितने हैं? 150 स्टूडेंट। तो अगर आप इसके बारे में बात करो तो सक्सेस रेशो तो बहुत है। तो वो 150 जने इसलिए बने क्योंकि वाजीराम रवि में है, कि इसलिए है कि उन्होंने अपने आप से मेहनत करी। तो दिस कैन ओनली हेल्प यू टू सर्टन एक्सटेंट। हो सकता है कोचिंग आपको थोड़ा हेल्प कर दे, हो सकता है ना करे, बट इन जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्रेजुएशन लेवल कोचिंग्स में, इज दैट दे काइंड ऑफ मिसलीड यू इन द सेंस दैट आपको वो ब्रेन वॉश इस तरीके से करते हैं कि एक तो आप कर नहीं सकते उनके बिना, यू बिकम हैंडीकैप इन दैट रिस्पेक्ट, और आपका माइंड शट हो जाता है। आई डोंट वॉन्ट दैट माइंड टू बी शट, आई वॉन्ट दैट माइंड टू बी ओपन, कि अच्छा ठीक है यार, मुझे मैथ से ये करने को मिलेगा, मैं ये इस चीज़ को ऐसा एनालाइज करता हूँ, अच्छा ये चीज़ मुझे इस मूवी में भी मिली, उस तरीके से आई वॉन्ट टू ओपन योर। डर को आगे ख़त्म करोगे तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है। डरना इज़ नॉर्मल, अगर आप डर नहीं रहे तो और मुझे डर ज़्यादा लग रहा है कि अगर आप डर नहीं रहे इस कोर्स से, तो जिसको डर नहीं लगता वो सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी है। कोई बात नहीं, पाइथन और आर के लिए तो बहुत सारे वो है। आर के लिए तो आप यू कैन गो टू माई चैनल, आपको स्क्रैच से आर मिल जाएगा, और मैं आज ही 4 वीडियोस डाल रहा हूँ जो मैंने श्यामलाल कॉलेज के अंदर पढ़ाया था अभी लास्ट वीक में। तो आई पुट 4 वीडियोस देयर, तो उसमें आर काफ़ी कुछ कवर हो गया, आपको फंडामेंटल तो कवर हो ही जाएगा आर का। इसके बाद गौरवीर, लेट्स नॉट गेट इनटू ISI राइट नाउ, ठीक है। प्रोग्रामिंग विद पाइथन कैन हेल्प यू एज अ GE if you have interest in computer science. That is also okay. It depends on you. WAC, SEC, it completely depends on you. जो आपको मन करता है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। I will send everything on the community again. Don't worry. How is that not visible? मैंने सभी को भेजा है, मैं 2 बार भेज चुका हूँ इसको कम्युनिटी को। मैं फिर से कम्युनिटी का वापस करता हूँ। Then I'll unmute Dipanshu also. We have not decided the fees yet because we're still in the phases of getting everyone on board, because
यूजुअली कोचिंग आर वेरी एक्सपेंसिव एंड मेरा जो कहना था वो ये था कि इट हैज़ टू बी इनएक्सपेंसिव. Everyone should be able to afford it, and over the top of it, the startup that I'm consulting to, उनको भी मैंने बोला है कि अगर आपको जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, यू हैव प्रूफ के साथ आई हैव टू गिव देम कि अच्छा ये स्टूडेंट ऐसा है, देन यू वुड हैव टू ऐड दैट पर्सन विदाउट अ फी एज वेल. सो it will be 70% with fee, 30% students without fee. So or a differentiated fee. So don't be offended by the fact कि कुछ आप में से फ़ी दे रहे होंगे और कुछ नहीं दे रहे होंगे. It's the discretion that we are taking, because we want everyone to have an equal opportunity to be educated. They are expecting in it WhatsApp links ही तो हैं, WhatsApp chat links ही तो भेजे मैंने. You see this, मैंने WhatsApp अब उसमें देखो लिंक्स भेज दिए हैं. ये वाला लिंक है आपकी इकॉन कम्युनिटी का, ये वाला लिंक एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स का. I'll send all the, डोंट वरी. आप पहुंच गए ना, SRCC पहुंच गए, कुछ दिमाग लगा के पहुंचे हो गए SRCC. ऐसे तो SRCC पहुंचे नहीं होगे, तो जब वहाँ पहुंच गए तो आगे भी निकल जाओगे. रिया, ऑल कॉलेजेस हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प. लेट मी नो विच कॉलेज यू आर फ्रॉम एंड आई विल टेल यू कि अच्छा वहाँ पर आपको आपकी फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाएगी. जैसे गार्गी में आई नो की फ़ी रिफ़ंड हो जाती है. एंड सिर्फ गार्गी की नहीं, आपको बहुत सारी और स्कॉलरशिप्स हैं. देयर स्कॉलरशिप्स फॉर SCs, देयर स्कॉलरशिप फॉर STs, OBCs, जनरल EWS स्कॉलरशिप्स भी होती हैं. देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप फोक्स. मतलब सरकार आपको बहुत सारा देने के लिए बैठी हुई है, एंड उसके बाद भी हम लोग बैठे हुए हैं. तो डोंट वरी अबाउट फाइनेंसेस. पढ़ने पे फोकस करो, फाइनेंसेस हैंडल हो जाएंगे. माइनर आई वुड से ध्रुव, मैथ्स में कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस में कर लो. माइनर अगर मैथ्स में कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो. ठीक है. आई विल मैत्री का मैं आपको बता देता हूँ. आई टॉक टू अ कपल ऑफ प्रोफेसर्स टू लेट यू नो. मिल जाएगा आपको यार, मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. माइनर इन स्टैट्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड. माइनर इन स्टैट्स, मैथ्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और अगर आपको अपनी लाइफ ईजी बनानी है तो आप पॉल साइंस ले लो कि अच्छा ठीक है, मुझे पॉल साइंस साथ में करता रहूँगा या करती रहूँगी, एंड ज़्यादा टेंशन नहीं होगी मैथ्स वैथ्स की. मुझे सिर्फ UPSC करना है, मुझे मास्टर्स के बारे में सोचना भी नहीं है, मुझे देखनी भी नहीं है मास्टर्स, और सिर्फ UPSC करना है, तो आप ये कर लो, कोई टेंशन नहीं है. फिर ये कर सकते हो. साइकोलॉजी कर सकते हो. वो साइकोलॉजी को मत भूलो, साइकोलॉजी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू डू. फिलॉसफी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन. वो भी आपको UPSC में हेल्प कर जाएगा. फिलॉसफी में एक एथिक्स इन पब्लिक डोमेन करके एक पेपर आता है, वो एथिक्स जैसा पेपर 4 जो है उसके जैसा है. तो एंड जब हमारा अभी इको का सेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इको भी वो UPSC भी कैसे पढ़ना है. तो अभी हमारा फोकस UPSC के लिए होगा किताब, न्यूज़पेपर पढ़ना, एंड आई विल गिव यू अ सेट ऑफ 15 to 20 बुक्स टू रीड. वो आपको नेक्स्ट 1.5 साल में पढ़नी है. आप किताबें खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, जैसे मर्जी खरीदो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, दिखाओ कि हाँ कि मैं एक UPSC का प्रोडक्ट हूँ. मैं वो गधा नहीं हूँ जो सिर्फ एक UPSC को देख के चल रहा है. मैंने अपनी एक पर्सनैलिटी भी बनाई है. तो वो पर्सनैलिटी बनानी है पहले अपने आप की, और उसके लिए यू शुड बी वेल रेड. यू शुड नो द वर्ल्ड अराउंड. डोंट ओनली थिंक अबाउट UPSC राइट नाउ. एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मेक योर सेल्फ ओपन. तो वो नीचे सर रख के UPSC ने प्रिपेयर किया था. Coaching, I will let you know. Coaching for CAT, I know a couple of good professors who helped me in my preparation of CAT. एक अरुण शर्मा करके नाम है टीचर, इनकी बुक्स आती हैं, सर्च करना अरुण शर्मा सर. ही हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई CAT prep. तो इज़ अ वंडरफुल टीचर एज वेल. बट अगेन हर किसी का टेस्ट, मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि किताबें पढ़ के भी काम हो जाएगा अगर आप किताबें अच्छे से पढ़ लो तो. सो यू कैन रीड हिज बुक्स एज वेल, बट नॉट नाउ. और अगर आप CAT के लिए पढ़ना चाह रहे हो, GMAT GRE के लिए करना चाह रहे हो, तो आप वैदिक मैथ्स भी ले सकते हो अपनी. आई थिंक वो आपका वो है VAC है शायद से. वैदिक मैथ्स भी ले सकते हो, उसको भी आपको हेल्प करेगा. वी हैव अ सेशन फॉर एप्लीकेशन अब्रॉड. आई विल कॉल माई स्टूडेंट्स जो अभी वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ इन एन Ivy League डूइंग अ PhD. One of them is at Harvard, the other one at Princeton, one of them is at Penn State. तो I will call them up. एक LSE में है, एक Warwick में है. तो I'll call these students and they'll help you how to study abroad वगैरह. But अभी hold on. अभी आओ पहले इसमें आ जाओ.
शिवप्रिया, ये आपको शायद से यूपीएससी में हेल्प कर देगा ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ अ मेजर पोर्शन इन यूपीएससी। इफ़ यू टेक पाइथन और नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉलेज पे डिपेंड करता है। नहीं, मुझे प्लीज़ टेक्स्ट करना रिया, मुझे याद नहीं रहेगा। आज 5 बजे थर्ड लिस्ट आनी है ना, आई एम द कोऑर्डिनेटर एट माई कॉलेज। मेरे पास एकदम से मैसेज फ्लड हो जाएंगे, सो डू रिमाइंड मी, आई विल कॉल अप द अथॉरिटीज़ एंड आई लेट यू नो। एक्चुरियल्स अभी मत सोचो, मास्टर्स शुड आई गो विद मैथ्स और स्टैट, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। स्टैट्स का मुझे पेपर बता दो कि पेपर कौन सा है, ठीक है। नाउ द फ्लोर इज ओपन फोक्स, अगर किसी को अनम्यूट करना है, अपने आप को करवाना है, तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड देन वी। सर मैं पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ सर, 11th 12th में मेरा पीसीएम बैकग्राउंड था। अच्छा, अभी इको ऑनर्स, अभी सर मैं जी पॉलिटिकल साइंस की लेने का प्लान है सर मेरा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अगर मैं मैथ्स का सोचता हूँ तो क्या वो इजी रहेगा मेरे लिए? देखो पीसीएम तुमने वैसे भी फिजिक्स पढ़ लिया है ध्रुव, तुमने मैथ्स वैसे ही पढ़ लिया, तुम्हारा मैथ्स तो मैं वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी लग रहा है कि तुमने उसके लिए भी पढ़ा होगा शायद से, जेई के लिए भी पढ़ा होगा शायद से। हाँ, तो जब जेई के लिए पढ़ लिया तो इस मैथ से क्यों डर रहे हो भाई? जब तुमने जेई के लिए पढ़ लिया, तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है ना, तो उसको जो तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट है उसको वीक क्यों बना रहे हो? और मैथ्स तुम्हें इन एनी केस हेल्प ही करेगा। तो तुम्हारा वो मैथमेटिकल तुम्हें यूपीएससी करना है ना। हाँ, तो जब यूपीएससी करना है तो एक मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल मैथ्स तुम्हें इन जनरल हेल्प करेगा लाइफ में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचने के लिए। तो डरो मत मैथ्स से भागो मत। जिस चीज़ से भागोगे ना वो वापस आके पीछे आके बाद में हर्ट करेगी। मत डरो मैथ्स से, कर लो मैथ्स को। और हम मुफ्त प्रोवाइड कर तो रहे हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें? कि मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो क्या है कि कॉलेज में नहीं समझ में आएगा, उसके लिए मैं मुफ्त प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हें। जी सर, इसी का डर है सर, कॉलेज में समझ नहीं आएगा। नहीं समझ में, अगर समझ में मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, कोई बच्चा कहता है कि यार मूक्स भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, खान अकेडमी सुना है? खान अकेडमी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर तुम्हें मैथ्स के ऊपर फंडामेंटल से लेके सब मिल जाएगा। कोर्सेरा पे जाओ, ईडीएक्स पे जाओ, वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे तुम्हें। जो मैथ्स का कैलकुलस का कोर्स चाहिए वहाँ मिल जाएगा। पूरी दुनिया, यूट्यूब पे सर्च कर लो तो पूरी दुनिया तुम्हें फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी है। अब अगर तुम फिर भी नहीं पढ़ना चाहते तो फिर कोई क्या कर सकता है? तो अब जैसे टैबलू है, मैंने पूरा कोविड के टाइम पे पाइथन और टैबलू फिर पूरा अपने आप से सीख लिया। क्यों? खाली बैठे थे, यूट्यूब पे सर्च किया, एक के बाद एक लेक्चर आते गए, सॉल्व करते गए, साथ में प्रैक्टिस करते गए, हो गया। तो टेंशन नहीं है कि होगा नहीं होगा, कोई भी चीज़ तुम्हें होल्ड बैक नहीं करनी चाहिए। और डरो तो बिल्कुल मत। यही तो 3-4 साल है, एक्सप्लोर करो अपने आप को, किताबें पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, अपने आप को माइंड अपना फ्री करो। एंड फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आई एम देयर। तमीज़ से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, 100% कुछ ना कुछ करियर में करवा दूंगा। माइनर मैथ्स में अभी शुरू करो तो मैथ्स से करो, मैथ्स से करो, उसके बाद देखेंगे बाद में। पहले मैथ्स से शुरुआत करो, पहले 3 सेमेस्टर तो मैथ्स ही रहो। सारांश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बताओ सर। माइग्रेट देखो, अगर तुम्हारे फर्स्ट ईयर में अच्छे ना, कौन से कॉलेज से हो सारांश तुम? दयाल सिंह। तो दयाल सिंह आई थिंक एनओसी दे देता है। तो पहले तुम्हें अराउंड 9 CGPA चाहिए होगा, 8.5 से लेकर 9 के बीच में CGPA चाहिए होगा पहले साल के बाद में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के एंड तक। तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट लेके तुम अलग अलग कॉलेजेस में जाओगे। सपोज चलो गार्गी में तो तुम एडमिशन ले नहीं सकते अनटिल अनलेस तुम जेंडर चेंज करा लो। तो इस केस में तुम्हें सपोज चाहिए, SRCC में लेगा नहीं, हंसराज में जा सकते हो। बेस्ट कॉलेजेस तुम्हारे लिए हंसराज है, हिंदू। अब तुम्हें हंसराज जाना है तो हंसराज में जाके पहले देखोगे कितनी सीट्स खाली हैं। तो सपोज तुम जनरल कैटेगरी के हो और जनरल कैटेगरी की वहाँ पर 2-3 सीट्स खाली हुई हैं, तो उसके बाद वो एप्लीकेशंस मंगवाएंगे। अगर तुम्हारा बेस्ट CGPA होगा, जितने लोगों ने हंसराज में अप्लाई किया आफ्टर फर्स्ट ईयर, उसमें सबसे अच्छा तुम्हारा CGPA है तो तुम्हें हंसराज में ले लिया जाएगा। SRCC और स्टीफेंस नहीं लेते। SRCC और स्टीफेंस में माइग्रेशन, स्टीफेंस में तो आई डोंट थिंक माइग्रेशन अलाउड है, SRCC में तो 100% नहीं अलाउड नहीं है। तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो हंसराज या हिंदू का बचता है। देखो अपने फ्यूचर के हिसाब से लो, मैथ्स में तो नंबर भी ज़्यादा आते हैं। तो फिर कोई इजी सा ले लो, आसान सा ले लो। तो फिर R ही ले लो ना, क्यों 4 गुना काम कर रहा है? 2 लैंग्वेज एक साथ सीखने में सरदर्दी है। मैंने पहले पाइथन सीखा था, क्योंकि पाइथन सीख लिया था इसलिए R बड़ा इजी लगा। तो स्टिक टू, अगर तुम वहाँ पर R सीख रहे हो तो यहाँ भी R ले लो।
कॉम्प्लीमेंट करेगा ना। should I take commerce or math? देखो मैथ्स स्कोरिंग है, कॉमर्स अगर लाइफ इजी बनाना चाह रहे हो कि अच्छा यार ठीक है और टेंशन नहीं लेनी है तो ले लो उसको, कॉमर्स ले लो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा ना शायद से कॉमर्स में। So we have two options: business organization and finance for everyone. फाइनेंस फॉर एवरीवन वो थोड़ी ना है, फाइनेंस फॉर एवरीवन तो एसईसी है। So in GE also we have that. अच्छा देख लो यार कोई भी ले लो। मेरा पर्सनल देखो, मैं पर्सनली, और मैं पहले बता रहा हूँ मेरा बायस है मैथ्स को लेके, ठीक है, कहीं बाद में रो कि सर ने बोल दिया मैथ्स लेने के लिए। मेरा प्रॉपर बायस है मैथ्स के लेके, क्योंकि मुझे मैथ्स पर्सनली मुझे लगता है कि मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ्स स्ट्रांग हो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, मैथ्स वीक हो तो बहुत सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। तो जब तुम एक्चुरियल कर रहे हो तो तुम्हारा वैसे ही मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। Yes. तो आइडियली इट मेक सेंस, बट पढ़ना पड़ेगा। देखो तुम सोचो कि हलवा है, हलवा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मुझे और Culture. हाँ एक बार ध्रुव मुझे मैसेज कर दो, तुम्हारे कॉलेज से कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, Okay, sir. ठीक है। ओके, एनीवन एल्स एनी क्वेश्चन फोक्स, किसी और ने? हाँ दीपांशु बोलो। सर आप वो सर इकॉन कम्युनिटी वाला ग्रुप का लिंक सेंड कर दो। अरे ग्रुप का लिंक कितनी बार सेंड करूँ मुझे ये बताओ। ये क्या है ये देखो, ये ग्रुप्स ही तो है। चैट की विंडो तो खोलो, चैट की विंडो में मिल जाएगा। तुम कौन से कॉलेज से हो? रुको एक काम करो, मुझे मैसेज करो इस नंबर पे, भेज दिया मैंने तुम्हें अपना नंबर, इस नंबर पे मैसेज करो, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। एनीवन एल्स फोक्स? ओके फोक्स, सो आई विल अपडेट यू अबाउट द मूक्स इन द कमिंग वीक। एक ये अपडेट करना है, और दूसरा आई विल अपडेट यू ऑन the next thing I'll update you on is the UPSC session that we are planning to have. I'll just see कि कौन free है in civil services. DRC, Samiksha, please message me. I don't think we have someone. I think we have someone from DRC, but you can message me and then I'll take it up. So please folks, try to first of all try to get to more students, especially program students, and make this community as large, as big as possible. The bigger this community, the better is it is. Economies of scale आप लोग पढ़ोगे, economies of scale होगा, economies of scale होगा तो और ज़्यादा हम चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, and it will be at really I mean it could be affordable for everyone. So something like your course era or EDX that we are trying to actually build. And even if that's not possible, again as I told you that 30% of the students we have already reserved as free students. So thank you very much folks for attending this session, and I'll be updating you with all the links and all the upcoming programs, and see you in the coming week. Okay folks, see you, bye bye, have a great Sunday.